ملتان چناب اور ستلج کے گھیرے میں آ گیا. پی ڈی ایم اے نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی. ملتان کو بچانے کے لیے شیرشاہ بند توڑنے کا فیصلہ. شہریوں کے انخلاء کے لیے علاقے میں اعلانات شروع. شیرشاہ روڈ پر دریائے چناب کا پل دونوں اطراف سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ بہاولپور بائی پاس چوک، ناگ شاہ چوک اور نواب ہوٹل سے ٹریفک کو متبادل راستوں کی طرف موڑا گیا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما القاسم گیلانی نے بھی بند توڑنے کی تصدیق کر دی. سیلاب نے جلال پور پیروالا میں تباہی مچا دی. 100 سے زائد بستیاں ڈوب گئیں. پانی شہر کے بند تک پہنچ گیا. ریڈ الرٹ جاری. شہر کو بچانے کے لیے بہاڑی پل بند کو توڑ دیا گیا. 90,000 کی آبادی متاثر. لوگ بے یارو مددگار. کسی مسیحا کے منتظر. لوگوں نے جانیں بچانے کے لیے چھتوں پر پناہ لی. شہری بند کو محفوظ بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. فوج اور انتظامیہ کی امدادی کارروائیاں جاری. اکبر شاہ بند ٹوٹنے سے 1,500 گھر ڈوب گئے. جلال پور پیروالا میں سیلابی ریلا. عوامی بند. معزہ شاہ رسول والا کا حفاظتی بند توڑنے کے بعد شہر کو بچانے والے اربن بند تک پہنچ گئے. ہیڈ تریموں سے آنے والا ریلا بھی ملتان کے قریب. ڈی جی پی ڈی ایم اے کہتے ہیں کہ آئندہ 2 دن ملتان کے لیے آسان نہیں ہوں گے. پنجاب میں اتنی زیادہ سیلابی صورتحال ہو گئی. پانی آگے اس رفتار سے نہیں گیا جس رفتار سے اسے جانا چاہیے تھا. ہیڈ محمد والا، گرے والا، بند بوسن، شیرشاہ میں دوبارہ سطح بلند ہونے کا امکان. ملتان سے 2,000 سے زائد متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل. مظفر گڑھ کے علاقے عظمت پور میں بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں زیر آب. رنگپور، دوآبا، سنکی، خان گڑھ میں کشتیوں کے ذریعے 1,000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل. جھنگ میں آنے والے دوسرے بڑے ریلے سے 300 سے زائد دیہات سیلاب کی زد میں ہیں. 2,81,000 ایکڑ پر فصلیں تباہ. وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکہ کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات. امریکی کمپنیز کا معدنیات میں $50 کروڑ کی سرمایہ کاری کا اعلان. جدید ریفائنری، کان کنی اور لاجسٹکس منصوبے بھی طے پا گئے. دونوں ممالک کے درمیان اہم معدنیات سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط. NLC اور موٹا اینجل گروپ کے درمیان لاجسٹک معاہدہ بھی طے پا گیا. منرلز کی ٹوکنائزیشن کے ذریعے عالمی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کا موقع دیا جائے گا. امریکی کمپنیز کی معدنی وسائل کی ویلیو ایڈیشن میں سرمایہ کاری کی یقین دہانی. ابتدائی طور پر پاکستان سے اینٹی منی، تانبا، سونا اور ریئر ارتھ ایکسپورٹ ہوگا. پاکستان میں USSM کی جدید ریفائنری قائم کرنے کا اعلان. ریفائنری دفاعی، ایروسپیس اور ٹیکنالوجی انڈسٹری کے لیے مصنوعات تیار کرے گی. امریکی وفد میں متحدہ اسٹیٹ اسٹریٹجک میٹلز اور موٹو اینکل کے نمائندے شامل. امریکی وفد پاکستان میں کان کنی کے آپریشنز کی توسیع کے مواقع تلاش کرے گا. ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شریک. امریکی وفد کا دورہ پاکستان کے لیے سرمایہ کاری کے لیے نئے مواقع کھولے گا. اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے صحافیوں پر تشدد کا مقدمہ درج. علیمہ خان بھی نامزد. مقدمہ صحافی کی مدعیت میں درج کیا گیا. مقدمے میں پی ٹی آئی وکیل نعیم پنچھوتا سمیت 40 نامعلوم کارکنان بھی شامل. تھانہ صدر بیرونی نے 5 مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا. بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا. حکومتی الرٹ جاری. دریائے ستلج میں ہریکے ڈاؤن سٹریم اور فیروزپور ڈاؤن سٹریم میں اونچے درجے کا سیلاب. پانی کے بہاؤ میں مزید اضافے کا خدشہ. قصور میں پانی کے تیز بہاؤ نے درجنوں دیہات کو گھیر لیا. مقامی کشتیاں لائف جیکٹس کے بغیر چلنے لگیں. سیلاب متاثرین اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر سفر کرنے پر مجبور. پاک پتن میں 1 لاکھ سیلاب متاثرین بے یار و مددگار. 68,000 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ. میلسی کے 30 سے زائد موضع جات متاثر. بہاولپور میں زمیندارہ بند ٹوٹنے سے کئی افراد بے گھر. حاصل پور میں موضع نور شاہ کا حفاظتی بند ٹوٹنے سے کئی گھر اور کھڑی فصلیں تباہ. پی ٹی ایم اے نے 9 ستمبر تک راوی، ستلج اور چناب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کر دیا. دریائے راوی بھپڑنے سے سیلاب کی تباہ کاریاں جاری. اکاڑا، ساہیوال، تاندلیا والا، پیر محل، کمالیہ کے 103 موضع جات متاثر. ہیڈ سدھنائی پر پانی کی سطح مسلسل بلند. الرٹ جاری. سیلاب متاثرہ علاقوں میں دوسرا ریلا بھی داخل. 3,66,000 سے زائد افراد مشکلات کا شکار. متاثرہ علاقوں سے اب تک 2,88,111 افراد کا انخلاء کیا جا چکا. دریائے راوی میں آنے والے سیلاب سے اب تک 5,000 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہوئے. مونسون بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری. ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 12 افراد جاں بحق، 3 زخمی. 26 جون سے اب تک 922 افراد جاں بحق.
10,047 जख्मी हुए। एनडीएमए के मुताबिक जान बहक होने वालों में 525 मर्द, 246 बच्चे, 151 खवातीन शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 504, पंजाब में 244, सिंध में 60 और बलूचिस्तान में 26, गिलगित बल्तिस्तान में 41। आज़ाद कश्मीर में 38 अफराद जान बहक हुए। जलालपुर पीरवाला की बस्ती खलीलाबाद में 4 अफराद सैलाब में डूब गए। एक लाश बरामद, एक शख्स को रेस्क्यू कर लिया गया। दीगर की तलाश के लिए लवाहिकीन रेस्क्यू अमले के मुंतज़िर। सैलाब के बाइस पंजाब के 3,000 सरकारी स्कूल्स बंद। दरिया रावी और सतलुज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल के बाइस विहाड़ी के मुतासरा 32 देहात के स्कूल्स की छुट्टियां 14 सितंबर तक बढ़ा दी गई। पिंडी भटिया में सैलाब मुतासरा 111 देहात के तालीमी इदारे 12 सितंबर तक बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। शहर से अर्बन फ्लडिंग का पानी साफ नहीं हो सका। गुजरात के बासियों की जिंदगी से जंग जारी। बड़े इंसानी अलमिया का खतरा, खुराक का बहरान, पानी नापैद। इंतजामिया की सबसे अच्छी की रिपोर्ट। गुजरात में सैलाबी पानी 6 रोज बाद भी शहर से मुकम्मल तौर पर ना निकाला जा सका। लोग घरों में महसूर, निज़ाम जिंदगी मफलूज। मुतासरा इलाकों की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ने लगी। लोग बीमारियों और भूख के शदीद खतरे से दो चार। साफ पानी और हिफ्जाने सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर। मकीन अपनी मदद आप के तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मोहल्ला शाह हुसैन, शफियाबाद, बख्शोपुरा, ख्वाजगान रोड और गरीबपुरा, कोट रोड, अलीपुरा और दीगर मुतासर। जेल रोड, शादमान, बारादरी, कमर से आलवी रोड भी मुतासर। गुजरात का बड़ा हिस्सा सैलाबी पानी से क्लियर कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का दावा। वज़ीर आला की गुजरात से सैलाबी पानी के मुकम्मल इनखला तक अमले को फील्ड में रहने की हिदायत। मदीना सईदा के हिफाजती बंद में शिगाफ से सैलाबी पानी के निकास में ताख़ीर का सामना। मदीना सईदा में पानी मशीनरी और मकामी अफराद की मदद से सैलाब से तन्हा मुकाबला नहीं कर सकते। आलमी दुनिया हमारी मदद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में मुतासरीन से खिताब। कहा सैलाब मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जनूबी पंजाब के आवाम भी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। ज़रूरी एमरजेंसी लगाकर किसान को बीज और खाद मुफ्त दी जाए। इस वक्त सियासत को भूल कर आवाम का साथ देना चाहिए। अवामी मसाइल का फौरी हल होना चाहिए। मौजूदा बहरानों का तन्हा मुकाबला नहीं किया जा सकता। वज़ीर ख़ारजा को आलमी सतह पर सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील करनी चाहिए। सैलाब के बायस सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब में हुआ। ज़रूरी ज़मीनें तबाह हो गईं। हम सब की जिम्मेदारी है कि आवाम का साथ दें। कुदरती आफत से होने वाले नुकसान को पूरा करने की कोशिश की जाए। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि BISP के ज़रिए माली इमदाद की जाए। सैलाब से पंजाब का किसान तबका ज़्यादा मुतासर होगा। सैलाब के बाद पंजाब और सिंध को तूफानी बारिशों ने लपेट में ले लिया। लाहौर से कराची तक बारिशों ने तबाही मचा दी। बिजली गायब, गलियां ज़ेर-ए-आब, दफातर बंद। अवाम का जीना दो भर। मुतादिद शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। जल थल एक हो गया। नशबी इलाके नदी नाले बन गए। फैसलाबाद में कई इलाकों में पानी जमा हो गया। जहलम में गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। शेखुपुरा में मूसलाधार बारिश के बायस नशबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। सिंध में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल जारी। घोटकी, मीरपुर खास में बारिश से नशबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। सखर और हैदराबाद में बारिश के बायस 109 फीडर्स ट्रिप कर गए। लाड़काना में मूसलाधार बारिश से अस्पताल, थाने, सरकारी और निजी दफातर और तालीमी इदारे डूब गए। शहरी घरों तक महदूद। महकमा मौसमियात ने आज भी शहर कायद में बारिश की पेशगोई करते हुए कहा सिंध पर असरअंदाज मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। आज सिस्टम कराची के करीब से गुजरते हुए 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश बरसा सकता है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन और इंसाफ की बात की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने कभी भी जारहियत का रास्ता नहीं अपनाया। हमेशा खित्ते में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी के जरिए दुनिया में अपना नुक्ता नज़र मौसर अंदाज में पेश किया। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को दो कौमी नज़रिए के तनाजुर में देखना चाहिए। भारत की मौजूदा हुकूमत ने अक़लियतों की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया। सैलाबी सूरत हाल पर कौमी एकजहती की ज़रूरत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की
वजीराबाद दौरे के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कि सैलाब के बायस लाखों लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सूबों और आवाम को पंजाब की मदद की तरफ आना चाहिए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली को जल्द यकीनी बनाया जाए। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक अफवाहें गलत, सियासी इस्तेहकाम के लिए तनाव को कम करना होगा। अभी भी वक्त है कि मामलात को सियासी तरीके से हल किया जाए। ज़िमनी इंतखाबात से बाइकआउट हमारा उसूली फैसला। पीटीआई अरकान की कौमी असम्बली से नाअहली गैर कानूनी। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के रेफरेंस के बगैर नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार नहीं। पहले आइए, केसेस को पहले देख रहे हैं। ये नहीं करेंगे कि सबसे नीचे केस उठाकर ऊपर ले आएं। जजेस के खिलाफ 64 शिकायत का फैसला हो चुका। 72 शिकायत पर राय तलब की। शफाफियत के लिए अंदरूनी ऑडिट का अमल भी शुरू किया जा चुका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का नए अदालती साल के आगाज पर जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा अदालतों में ई सर्विसेज का आगाज किया जा चुका। फाइलों की डिजिटल स्कैनिंग होगी। केस मसनूई जहानत से मुकर्रर होंगे। रूल्स को एक दिन में नहीं बनाया जा सकता। इस्लामाबाद से बाहर जाने पर जजेस को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ सकती है। रेड जोन में ऐसा नहीं। मेरे साथ सिक्योरिटी की 9 गाड़ियां होती थीं, कम करके सिर्फ 2 रखी हैं। अदालती तातीलात के दौरान किसी जज को इजाजत की जरूरत नहीं, ताहम आम तातीलात के अलावा छुट्टी के लिए बताना लाजमी होगा। सदर आसिफ अली जरदारी से सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया के पेशा वराना उमूर और मुल्की दिफा पर बातचीत। सदर ने पाकिस्तान की समुंदरी सरहदों के दिफा में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। नवाज शरीफ मरियम नवाज से ईरानी सफीर और बांग्लादेश के मुशीर मजहबी उमूर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, तवानाई और तिजारत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा कि ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतरी की आला तरीन सतह पर लेकर जाना चाहते हैं। बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी उमूर से मुलाकात में बांग्लादेश में पाकिस्तानी तलबा के लिए 500 नए स्कॉलरशिप्स का ऐलान। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी आवाम के दिल आज भी बांग्लादेशी भाइयों की मोहब्बत पर मौज़न है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बाहमी क़ुर्बत बढ़ने के लिए बेहतरीन वक्त है। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। कच्चे के इलाके ज़ेरे आब। लोगों की नकल मकानी। मजीद 17 बस्तियों को अलर्ट जारी। महकमा आपाशी के तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मुतासिरीन सैलाब को हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रहे हैं। सूबे के 15 अजला के 167 यूसी से अब तक 1,33,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 5,830 अफराद को मुंतकिल किया गया। सैलाब की संगीन सूरत हाल हो या बेयारो मददगार मुतासरीन की फरियाद। जब हर तरफ खामोशी थी, ABN न्यूज़ बोल रहा था। जंग और शोरकोट के डूबते देहात में समी इब्राहिम की आंखों देखी हकीकत। गुजरात और सियालकोट के पानी में घिरे चेहरों तक अलीना शिगरी की रसाई। सैलाबी पानी में डूबे इलाके हों या हुकूमत के बंद दरवाजे, ABN पहुंचा हर उस जगह जहां आवाम की आवाज़ कोई नहीं सुनता। मुतासरीन की उम्मीद, उनका सहारा, उनकी आवाज़। ABN न्यूज़।